Okay. So you all are able to see the screen? सबको दिख रहा है screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So we already discussed the MCQs. हम लोगों ने MCQs पहले कर लिया था. What are those? The first question जो है that is पहला question का क्या आंसर होगा? First MCQ का? Scanning. The answer of this is scanning. Scanning is the process of analyzing the environment for the identification of factor which have impact on or have implication for the business. So we were on this topic only, I guess. We were doing the environmental scanning process. Okay, so today we are going to complete it, right? Okay. What is the answer of the second one? The government strategy in respect of public expenditure and revenue which has a significant impact on business is monetary policy, fiscal policy, and trade Fiscal policy, policy. foreign exchange policy. So I already told you कि जो monetary policy होता है that is controlled by the central bank. ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का central bank क्या है? Reserve Bank of India. ठीक है, so it is going to controlled by RBI. ठीक है, monetary policies, inflow and outflow of the cash, money, everything is managed by the central bank, right? Next one is fiscal policy. Fiscal policy is related with the government strategy, that how they are going to spend their money, how they are going to take the taxes. All things are considered under the fiscal policy. So the answer will be the fiscal policy. The trade policy and the foreign exchange policy. Trade policy is related with the export and import, and foreign exchange policy is related with the exchanging of the currencies. करेंसी के एक्सचेंज के टर्म को हम फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी कहते हैं. यहाँ पर हम किस तरीके से अपने मनी को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे करेंसी में फॉर द ट्रेडिंग पर्पस. तो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में ये सारे टर्म्स आपके आ जाएंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन सी जो क्वेश्चन है, सी देखिए. सी में क्या है? That is concerned with the holding the balance between economic, social goals, between the individual and the communal goals. I already told you about the corporate governance. The answer of this will be corporate governance. Do one thing, just write what is the meaning of corporate governance. सारे बच्चे corporate governance क्या होता है start कीजिए लिखना. Corporate governance जो होता है, it is a kind of ethics which the business are following. Why they are following such kind of ethics? Because they want to accomplish every goal. Either it is related with the society, it is related with the community, it is related with the economic and social goals. Every goals they want to accomplish, and they want to work in a balanced way. So because of this only, this term is corporate governance. ठीक है, so okay, so सारे बच्चे एक कोई भी मुझे बताना जो रिकॉर्डिंग है that is on or what? Yes, On ma'am. है ma'am. Okay. ma'am. Yes, ma'am. On, ma'am. Recording. Okay. ठीक है. Write about what is corporate governance. लिखिए corporate governance क्या होता है. See, I am going to make one. मैं एक यहाँ पर शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आपका व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ. I am just going to make a drawing here. It is a figure related with the corporate governance. See, corporate governance is something which is engaged with all these factors. The first one here, it is engaged in the company. कंपनी में यहाँ पर कंपनी को बैलेंस करेगा, सप्लायर्स को हैंडल करेगा, पब्लिक को देखेगा और कस्टमर को यहाँ हैंडल करेगा. सो दिस होल थिंग कम्स अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इट इज बेसिकली वर्किंग फॉर अकॉम्प्लिशिंग एवरी गोल. इट इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज, इट इज रिलेटेड विद द कस्टमर्स, इट इज रिलेटेड विद द सोशल इकोनॉमिक, सब गोल को अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करता है. लिखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ कॉन्सेप्ट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सारे बच्चे लिख रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. लिख रहे हैं. Yes, ma'am. लिखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ कॉन्सेप्ट which revolve around, जो revolve करता है, corporate governance is a concept which revolves around the appropriate management. लिखिए, appropriate management and control of a company. The corporate governance जो है ये concept है which revolves around the appropriate management
and control of a company, so corporate governance, how it is working to make everything, मतलब जो भी मैनेजमेंट होगा एक बैलेंस्ड वे में मैनेजमेंट होना चाहिए एंड कंट्रोल होना चाहिए आपके कंपनी पे, ठीक है. So it is corporate governance is a concept which revolves around the appropriate management and control of a company. अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर आप अपनी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो इसमें लिखिए इट इंक्लूड्स रूल्स रिलेटिंग टू the power relation between it includes the rules relating to the power relation between owners, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो. एवरीवन, अगर मैं लिखवा रही हूं तो मुझे कैमरा ऑन चाहिए, ऐसे भी मुझे चाहिए कैमरा ऑन करके बैठो सारे बच्चे. एवरीवन, टर्न ऑन योर कैमरा. एवरीवन, if you are not able to hear me, I am repeating this word again and again. After that, I am not going to give any kind of excuse and these things I am not going to listen. Please don't do this. सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए और मुझे दिखना चाहिए नोटबुक कहां लिख रहे हो. नहीं तो आज अटेंडेंस भूल जाना. 2-4 बच्चों को दूंगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगा अटेंडेंस. चलिए. It includes the rule relating to the power relations between owners and BOD, board of directors, management and stakeholders. अच्छा, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है. स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो आपके कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जैसे क्रेडिटर हो गए, जैसे सप्लायर हो गए, आपके एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए. ये जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिसका प्रॉफिट, जिसका लॉस, कोई ट्रांजेक्शन कुछ भी है, तो दे आर स्टेक होल्डर्स. शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स इन शॉर्ट, ठीक है. तो इसको लिखिए. इट इंक्लूड्स द रूल्स रिलेटिंग टू द पावर रिलेशंस बिटवीन ओनर्स, the board of directors, management and the stakeholders में वही लिखा हुआ है, such as employees, suppliers, customers, as well as public at large. So they have a particular rule, protocols होता है आपके corporate governance को follow करने के लिए, ठीक है. यहाँ पर दे आर मेकिंग अ रिलेशन, जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉइंग, ये जो ड्रॉ किया है मैंने उससे आपको बताया, दैट द कंपनी इज रिलेटेड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, whoever there is in the company, who is related with the company, they are making a proper rules and policies. They want a sustained growth. Actual में corporate governance में क्या होता है कि they want a sustained growth and cooperation of all the stakeholders. In that situation, we are able to govern our company properly. ठीक है. So proper management is required. In general, अगर हम बात करें तो corporate governance जो है एक fair, transparent और एक ethical administration को favor करता है, ठीक है. आप ethically काम कीजिए, आप fairly काम कीजिए, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कीजिए, हिडन कुछ भी वर्क नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. पब्लिक को आप अपने ट्रांजैक्शन, पब्लिक को भी आप पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर रनिंग, ठीक है. सो एंड टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स. सो हियर एथिक्स इज अ कोर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है. और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ अप्लाई होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपनीज में अप्लाई होता है, एंड दैट इज अप्लाइड टू मेक अ प्रॉपरली मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स. एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कोर है दैट इज एथिक्स. एथिक्स के बिहाफ पे आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलता है, बेसिस पे चलता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेयरनेस को, एथिक्स को,
ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है बिजनेस में, ठीक है, कि हमें कोई भी काम फेयरली और लीगल वे में करना है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ओनली बट इट शुड बी प्रैक्टिस्ड इन ईच एंड एवरी कंपनी, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मैंने बताया स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर एथिकल वे होना चाहिए। इट इज बेसिकली प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, दे आर मेकिंग अ प्रोटेक्शन की तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेक होल्डर्स के लिए काम करता है। सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? Yes, ma'am. Okay, so let's start with the new topic. किसी को कोई डाउट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, anyone have any doubt in corporate governance? Okay, let's start with the question paper again. So corporate governance जो होगा, that will be the answer of the C. Then the D, see what I basically observed from the question paper, that the questions are very much raised from the sole proprietorship. So if anyone have any doubt in the sole proprietorship topic, you can ask in the classroom. किसी को कोई डाउट है? Okay. No, ma'am. What will be the answer of D? Which of the following is disadvantage of sole proprietorship? What will be the answer of D? Which of the following is disadvantage? Limited government Very regulation. good. The answer will be first. Okay, next question is, which of the following requires owner to be generalist manager with many diverse skill? What will be the sole proprietorship? Because in one person we want so many skills and quality, because every function is done by the sole proprietor in a particular business. Sole proprietorship business में एक ही person जो होता है, that person is controlling, that person is managing the whole business. जैसे हम लोग के आसपास में हम लोग देखते हैं ना, दुकान वाले भैया जो होते हैं वो क्या करते हैं? अकेले मैनेज करते हैं ना, दुकान शॉप को अकेले मैनेज करते हैं. So that is considered under the sole proprietorship. Hardly they are basically recruiting any helping hand के लिए किसी को भी उन्होंने recruit कर लिया, otherwise अकेले सब कुछ manage करते हैं. Okay, what will be the answer of F? All profit from the sole proprietorship belongs to exclusively to The owner. the owner. Yes, बिल्कुल, answer will be the owner. ठीक है, जितना भी प्रॉफिट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो सारा पैसा किसके पास जाता है? ओनर के पास जाता है. जो भी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं उन बच्चों को तो आई थिंक क्लियर होगा ही, है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन टू कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, जब दो कंपनी फॉर्म करती है एक नई कंपनी को, आंसर इसका होना चाहिए एमलगमेशन, बट यहाँ वो आपको ऑप्शन नहीं है. Then the answer will be the merger, right? Acquisition is always done when the big companies are acquiring the small companies, in the case that the small company is suffering in loss and that is nearby to dissolve. मतलब जब खत्म होने वाली होती है कंपनी बिल्कुल, तो कोई कंपनी एकदम से आकर उसको एक्वायर कर लेती है. जैसे जेबोंग है, जेबोंग बिल्कुल ही डाउन मार्केट चल रहा था आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लेटर ऑन मिंत्रा, ये फ्लिपकार्ट ने उसको क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया. सो इन शॉर्ट दैट इज एक्विजिशन. सो द आंसर ऑफ जी विल बी मर्जर. ठीक है, मर्जर होगा. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ एच? Leverage buyout. Leverage buyout. Why the answer will be leverage buyout? Because in leverage buyout जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने जो भी कंपनी खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उसी को एज अ कोलेट्रल यूज कर लेते हैं, सिक्योरिटी और गारंटी कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं बैंक के लिए. बैंक में कभी भी लोन बिना कोई प्रूफ का, बिना कोई कोलेट्रल और सिक्योरिटी का आपको नहीं मिलता है. नहीं मिलता है? मिलता है? No. Even if you are going to take the education loan, your father have to provide something or father will be your nominee, है ना. बहुत बार ये होता है, यही आपके गारंटी देना पड़ता है बैंक को, अदरवाइज बैंक आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा. तो लीवरेज बाई आउट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोन से, उसी प्रॉपर्टी को कोलेट्रल की तरह, सिक्योरिटी की तरह बैंक में छोड़ देते हैं, उसके पेपर्स को. ठीक है, पेपर्स को सबमिट कर देते हैं एज अ गारंटी. ठीक है, तो उनको कहते हैं लीवरेज बाई आउट. आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट?
Yes, In the ma'am. next question, partnership do not directly pay taxes on the business profit. For this reason, they are referred to as what type of organization? That is नॉन टैक्सेबल. दिस इज नॉन टैक्सेबल. ये होते हैं जो आपका जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, नॉन टैक्सेबल. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ जे? मैम नॉन टैक्सेबल और टैक्स फ्री में फिर क्या अंतर हुआ? सी टैक्स फ्री, नॉन टैक्सेबल जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है, और आपको जब टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी कि इट इज काइंड ऑफ वी कैन से इट इज सेम, लेकिन जब आपको टैक्स नहीं देने की जरूरत पड़ती है, दैट इज मतलब आपको छूट दे दिया गया, एग्जम्पशन से रिलेटेड है. टैक्स फ्री, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ सम रीजन, इधर यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट और समथिंग. बट इन द केस ऑफ नॉन टैक्सेबल जिसके ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म पे टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि हर एक पार्टनर जो है वो पर्सनल टैक्स पे कर रहा है. आई बात समझ में? पर्सनल टैक्स दे रहा है तो फॉर्म का टैक्स देने का जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर ये टैक्सेबल है ही नहीं, यानी कि ये टैक्स के स्लैब्स में आता ही नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, टैक्स फ्री यानी टैक्स का छूट दे देना आपको. ठीक है, आपको कुछ टाइम के लिए टैक्स फ्री कर देना, दैट कैन बी टेम्पररी. ठीक है, टैक्स फ्री का कहीं ऑप्शन मिल गया. एग्जाम्पशन, जब आप स्लैब में आ रहे हैं और आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया कुछ टाइम के लिए, तो दीज टू थिंग्स आर समटाइम टेम्पररी. नॉन टैक्सेबल जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई ही नहीं किया जा सकता है. ठीक है, ओके. Okay, next J, what will be the answer of J? Which of the following is the characteristic of sole proprietorship? The third one, it is easy to form. ठीक है, चलिए. So we already discussed about the MCQs, so I just repeated. Let's move toward the next question. What is the business environment? That is completed. Business environment क्या है? Complete हो गया. It is consist of the internal and external factors. Business environment is an integrated form and it is affecting the business in the two ways. Either in the opportunity भी देता है आपको business environment और threat भी है आपके लिए, है ना? Clear हो गया? बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी किया था, जैसे डायनामिक होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको एनालाइज करना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. मल्टी फेसेटेड है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मल्टीपल फेस है. कई बार आपके लिए बेनिफिट की तरह आएगा, कई बार आपके लिए लॉस लेकर आएगा. ठीक है, उसका इम्पैक्ट अलग अलग रेशियो में पड़ेगा आपके ऊपर. ठीक है, तो मल्टी फेसेटेड है. सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. What are the process of environmental analysis? We were on this question, I guess, right? We were on this question. Was also done. That Yes, is ma'am. done. Okay. So just wait for a minute. I am just, I just want कि एक बार आप लोग देख लो इसको, अगर कुछ भी डाउट है तो. इस क्वेश्चन में डाउट है? Anyone have any doubt in this question? Ma'am, third number, explain the micro macro environment. So we were on this point now. Question. So what will be the process of environmental analysis? See, why environmental analysis is required. So environmental analysis is basically, it is a managerial decision. Always remember that it is a managerial decision, यानी manager के द्वारा ये decision लिया जाता है. ठीक है, environmental analysis करने का. Environmental जो analysis जो है, it is a basically based on assessment of the impact of the business environment on the business. यानी business environment का हमारे business पे क्या impact पड़ेगा, उसको assess करने का तरीका है environmental scanning. ठीक है, sorry, analysis, environmental analysis. And scanning is a part or process. It is a one of the process of environmental analysis. ठीक है, so the steps which is required in the environmental analysis, that is 4 steps. The first one is scanning. Second one is monitoring, third one is forecasting, and last one is assessment. ठीक है, SMFA, इसको शॉर्टकट में ब्रैकेट में लिखिए SMFA. ठीक है, SMFA. ठीक है, so scanning, monitoring, forecasting, and final one is assessment. ठीक है, scanning में क्या करेंगे? We are going to we are basically involved in gathering the information. gather करना यानी collect करेंगे information और देखेंगे कि environment के uncertainty के बारे में देखेंगे, complexity के बारे में, इन सब चीजों को gather करके information को फिर assess करने की कोशिश करेंगे.
ठीक है. सो गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इज द मेन वर्क ऑफ द स्कैनिंग. ठीक है. वी आर बेसिकली गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट कैन बी द फ्यूचर चेंज दैट इज पॉसिबल. ठीक है. डिटेक्ट करेंगे चेंजेस को जो पॉसिबिलिटी है. मॉनिटरिंग में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रैक द इन्वायरमेंटल ट्रेंड. हम इन्वायरमेंटल ट्रेंड को ट्रैक करेंगे. ठीक है. कोशिश करेंगे देखने का कि भाई अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट क्या है, कैसा है. So we are basically going to do the audit work of the environment. Environment का हम auditing करेंगे, checking करना बोलते हैं जिसको, check करेंगे हम. ठीक है. दृष्टि स्टोर, दीपक स्टोर अलग अलग लिखा रहता था. क्या? Who is this? Who is this? If you don't want to attend the class, please class से बाहर जाइए. सॉरी मैम, मेरा अनम्यूट हो गया था. सॉरी मैम. कौन है, कौन बोल रहा है? मैम सचिन. सॉरी मैम. नेक्स्ट क्लास में नहीं होना चाहिए. चलिए. ओके. नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग. क्लियर हो गया? ठीक है. फॉरकास्टिंग में क्या करते हैं, देखो फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है ना बच्चे, जैसे फ्यूचर में क्या होगा, जैसे सेल्स फॉरकास्ट कि भाई फ्यूचर में मेरा 500 यूनिट इस प्रोडक्ट का बिक जाएगा, सेल हो जाएगा. ठीक है. तो हम फ्यूचर को लेकर के एक जो अजम्पशन करते हैं ना, दैट इज फॉरकास्टिंग. सो फॉरकास्टिंग इज अ स्टेप वेयर व्हाट इज लाइकली टू हैपन, मतलब हो क्या सकता है. ठीक है. इस चीज के बारे में हम एंटिसिपेट कर पाते हैं चेंजेस को कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी किस चीज की है. जैसे हम इन्वायरमेंट को पूरा चेक करेंगे, अपने पेस्टल वाले इलाके को. पेस्टल समझते हो ना क्या होता है पेस्टल? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीजें आपकी पेस्टल में आती हैं. तो यहाँ हम इन सारे की चीजों को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा जो फैक्टर है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, मतलब कौन सा ऐसा चेंज है जो पॉसिबल है इन सारे फैक्टर्स की वजह से. तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव पाथ्स ढूंढेंगे, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर मेरा ये फॉरकास्ट मतलब ये चेंज हो रहा है तो मुझे किस तरीके का डिसीजन लेना है. ठीक है. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बोल सकते हैं ना कि एडिशनल और अल्टरनेटिव थिंग, कि अगर ये इस रास्ते में जाने में कठिनाई है तो अगला रास्ता ले लेंगे. दिस इज द सिचुएशन ऑफ द फॉरकास्टिंग. Here we are going to think about the alternative modes and what changes can be possible in the future time. So we are forecasting those things. पहले से ही सोचेंगे उसके बारे में. And the last one is assessment. In assessment, what we are going to identify that what is the opportunity, what is the threat. If opportunity is there, we are going to grab it. If threat is there, we are going to try to minimize it. ठीक है. So यहाँ पर हम क्या देखेंगे, opportunity जो होता है वो favorable है, तो उसको हम ग्रैब करेंगे, अपने बिजनेस के लिए उसको यूज करेंगे. और अगर थ्रेट है जो अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में इसको मिनिमाइज करेंगे. तो यहाँ असेसमेंट जो है वो हमें फाइनल रिजल्ट देगा कि इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इस इन्वायरमेंट से हमें थ्रेट मिलेगा. सो इन द असेसमेंट इट इज अ रिजल्ट रिलेटेड प्रोसीजर. Here we are going to identify the environment or factors which is there in the business, related with the business. We are going to make it in the two column, what is threat and what is opportunity for us. So I guess this point is clear to all of you. True? Yes, ma'am. In shortcut अगर learn करना है तो scanning में लिखिएगा information gathering, monitoring में लिखिएगा auditing, audit करना यानी verify करना, auditing. Forecasting में लिखिएगा anticipate changes. स्कैनिंग में लिखिएगा, स्कैनिंग में इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मॉनिटरिंग में लिखिएगा ऑडिटिंग, फॉरकास्टिंग में लिखिएगा, फॉरकास्टिंग में क्या लिखना है, फॉरकास्टिंग में लिखना एंटिसिपेट चेंजेस. ठीक है. एंटिसिपेशन ही होता है, इंट्यूशन, एंटिसिपेशन, अरे ये हो सकता है, दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट. असेसमेंट में लिखिएगा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. ठीक है. आइडेंटिफाइज की अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. So I guess this point is clear to all of you. The processes of environmental analysis is done. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Let's move toward the next question. Next question is explain the micro and macro environmental factors affecting the business. Okay, so let's move toward the another figure I am going to make. चलिए इसको बनाते चलिएगा सब लोग.
So what is micro and macro environment? See, in the organization, there are some controllable factor and there are some uncontrollable factor. जैसे अगर बिजनेस में हम सप्लायर की बात करें तो सप्लायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक सप्लायर को हम नम चेंजेस के बारे में बता सकते हैं, सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, यानी बिजनेस उस फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बनी तो दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। ट्रू, सही बात है। And if there is a implementation of any kind of law, it is not going to controlled by the business, because business आपका law को control नहीं कर पाएगा कि भाई आप GST मत लाओ। It is not possible. So law का implementation, political situation, environment में अचानक से inflation आ गया, war हो गया, कुछ भी ऐसा reason हुआ, that is not controlled by the business. But yes, business can control what? Business can control the employees. Business can control the suppliers, right? So यहाँ पर यही सब चीजों को हमें पढ़ना है कि माइक्रो जो होता है that is controllable. माइक्रो जो environment है उसके जो भी कंटेंट है दैट इज कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस, बट द मैक्रो एनवायरनमेंट जो है दैट इज नॉन कंट्रोलेबल बाय द business. ठीक है, but for macro environment, what the company can do, the company can ready for that, the company can face that, and company can minimize the risk related with the macro environment. And micro environment is within the internal, एक तरीके से वो internally काम कर रहा है आपके organization में, within the internal है, within the बोल सकते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, सो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस को ऑपरेट करता है. दो कैटेगरी है बिजनेस एनवायरनमेंट का, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. Business activities are directly affected by the micro environment, while macro environment leaves an indirect effect on the business. देखो, माइक्रो का इफेक्ट डायरेक्ट होता है, माइक्रो कंट्रोल्ड भी होता है, और मैक्रो का इफेक्ट इनडायरेक्ट होता है लेकिन इफेक्ट होगा, लेकिन ये कंट्रोलेबल नहीं है. जैसे जीएसटी आया, जीएसटी ने डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं किया. जीएसटी ने क्या किया, आपके गुड्स और सर्विसेज पे था, तो जितने भी उससे रिलेटेड बिजनेस थी अपने आप उनको वो सब चीजें फॉलो करनी पड़ गई. ठीक है, सो माइक्रो का आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर में आपका इसमें इफेक्ट रहेगा, लेकिन मैक्रो का आपका एक्सटर्नल इफेक्ट है, लेकिन एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट इफेक्ट है और इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो माइक्रो एनवायरनमेंट और उसके फैक्टर्स की बात करें तो यहां पर इस तरीके से दो कॉलम सब बच्चे बना लेना. द फर्स्ट वन इज हियर माइक्रो, यहां पर माइक्रो लिख लो और यहां पर लिख लो मैक्रो, MA, माइक्रो, और हियर राइट मैक्रो. ठीक है, अब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या क्या, माइक्रो में क्या क्या आएगा, तो यहां लिख लीजिएगा सप्लायर्स, सप्लायर्स, देन राइट कस्टमर्स, सप्लायर, कस्टमर्स, देन राइट कॉम्पिटिटर्स. लेकिन कॉम्पिटिटर्स भी कई बार इसको मैक्रो में ले सकते हैं. ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, और यहां लिख लीजिए एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज. ठीक है, शेयर होल्डर्स, एसेट से शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो ये आपके पांचों जो हैं वो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे. सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स. सो दीज ऑल 5 कम्स अंडर द माइक्रो एनवायरनमेंट. क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? ओके, व्हाट इज अबाउट द मैक्रो एनवायरनमेंट, व्हाट कम्स अंडर द मैक्रो एनवायरनमेंट? सो इन द मैक्रो एनवायरनमेंट, राइट, मैक्रो में सबसे पहला पेस्टल, आप अगर लिखना चाहते हो तो पेस्टल लिख सकते हो. पी से हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉलिटिकल, ई से हो जाएगा आपका इकोनॉमिकल. ठीक है, इकोनॉमिकल हो जाएगा ई से, इकोनॉमिकल. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सोशियो, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर. देन आप लिख लीजिएगा टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, फिर आपका हो जाएगा लीगल फैक्टर, और ई से आ जाएगा इकोलॉजी एंड फिजिकल फोर्सेस। सो यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। कैसे? यहाँ पर ऐसे याद कीजिएगा, SCCESH या S, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बार C आ रहा है, 2 बार S आ रहा है और 1 बार E आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद करना है तो आप ऐसे करते हैं, ECS कर सकते हो, E C का स्क्वायर, E C का स्क्वायर, S का स्क्वायर, यानी कि C 2 बार है और S 2 बार है। तो E से हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, एम्प्लॉइज, C से कस्टमर और कॉम्पिटिटर, S से शेयर होल्डर्स, और आपके हो जाएंगे सप्लायर्स। तो दैट कम्स अंडर द माइक्रो एंड मैक्रो में पेस्टल, PESTLE, पेस्टल। क्लियर हो गया सबको? माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या चीजें आएंगी वो क्लियर हो गया ना? अब मैं समझाऊंगी एक एक करके पॉइंट। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरी स्टूडेंट। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? यस मैम। ओके उसका क्या होगा? ओके, चलिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड वन बाय वन, हम पॉइंट्स देखते हैं कि आपके माइक्रो के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है और इसका क्या इफेक्ट है। सो माइक्रो इन्वायरमेंट जो है, यस अनीशा? मैम पेस्टल में लास्ट में जो ई है उसका क्या होगा? इकोलॉजी एंड फिजिकल फोर्सेस। इकोलॉजी, ECOLOGY, इकोलॉजी एंड फिजिकल फोर्सेस, राइट? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है आपका? सुनिएगा, माइक्रो इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज में, जो मैंने आपको बताया डे टू डे ऑपरेशन में इसका इंपैक्ट है। जैसे एम्प्लॉइज हैं, काम कर रहे हैं, उनका इंपैक्ट आपकी डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। और या तो ये स्मॉल और माइक्रो इन्वायरमेंट जो है इनका डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके बिजनेस एक्टिविटीज में, और या ये स्मॉल स्केल हो या फिर लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर एक में इसका इंपैक्ट होगा। इसमें जो भी आपके फैक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे आपके फैक्टर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटेड है आपके बिजनेस से। उनका परफॉर्मेंस, उनकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगी। जैसे कस्टमर ने परचेज करना बंद कर दिया आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके एम्प्लॉइज वर्क प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं करें, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस। सो उनका डेली ऑपरेशन और उनका परफॉर्मेंस जो है वो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और ये सारे कौन कौन होते हैं? सप्लायर, शेयर होल्डर, कस्टमर, एम्प्लॉइज, कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा। सप्लायर्स कौन होंगे? सप्लायर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। These provides resources to your business like the raw material, machineries, equipment, etc. So they are known as the supplier of the business, ठीक है। इन ये क्या करते हैं? They are providing the input for the production in short. आपके यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके लिए इनपुट प्रोवाइड करते हैं कौन? सप्लायर्स। अगर इनका सर्विस, अगर इन्होंने आपको टाइमली प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जो आपके बिजनेस के लिए जरूर, आपकी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप जो है वो टायर बनाते हैं, ठीक है। अब आपको टायर के लिए रबर की रिक्वायरमेंट है और रबर आपके पास नहीं पहुंचा, ठीक है। तो व्हाट विल बी हैपन इफ द सप्लायर इज नॉट work properly, if they will not work or complete their work at the timely, or they are not able to provide the adequate service which is required from them, then in that situation the production can be delayed and that is going to delay the whole other procedure. सारे प्रोसेस को वो डिले कर देगा, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं होगा, मार्केट में वो टाइम पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो आपके सप्लायर का भी इंपैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि सप्लायर जो है वो आपके इनपुट को प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उन्होंने टाइमली आपको इनपुट प्रोवाइड नहीं किया तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द होल प्रोडक्शन, एंड इफ द प्रोडक्शन इज इम्पैक्टेड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। क्लियर? ये समझ में आया? ओके। एग्जाम्पल में देखिए कि अगर मार्केटिंग एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मान लीजिए कि अगर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस गेट्स अफेक्टेड इन केस द इंक्रीज रॉ मटेरियल प्राइस बाय द सप्लायर, इट विल फर्दर इंक्रीज द फाइनल प्रोडक्ट प्राइस। एग्जैक्टली आई टॉक, मतलब हम लोगों ने बात किया कि अगर वो टाइमली प्रोडक्ट को नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो वो प्रोडक्शन डिले हो जाएगा,
और अगर सप्लायर ने अपने रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा दिया तो फाइनल प्रोडक्ट भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए रबर का रेट बढ़ गया तो टायर का रेट बढ़ेगा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो कैब सर्विसेज ने रेट बढ़ाया कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, सो सप्लायर का भी आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ये इम्पैक्ट जो है वो कंट्रोलेबल है. Once you understand that the price of the product is raw material is increased, we are able to set the price of the final product high. ठीक है, so that is controllable, right? So I guess this point is clear that what is the impact of the supplier. ठीक है, तो supplier is responsible for providing the raw material to the company. If the raw material is delay, if they are not able to provide it in on time, or if the company is if the raw material price is increased by the supplier, it is going to impact the business. But yes, vice versa situation, अगर आपके raw material का price decrease होगा तो final product का भी cost हम decrease कर सकते हैं. ठीक है, clear? Okay, next one is customer. Who is the customer? He is the final receiver of the product. This person is going to consume the product. True? Consumer जो जैसे हम लोग क्या है, consumers है. So we are able to, when we are purchasing the product, we are consuming the product. Sometimes there are customers also, like our father is purchasing anything for us. ठीक है, so they are customer because they are purchasing for us. तो हम लोग उसको finally consume कर रहे हैं. So the person who is the end user of the product, they are known as consumer. Customer can be the buyer of the product, but it is not surety that he or she is going to consume it. Clear? चलिए, सो कस्टमर्स जो हैं वो किंग होते हैं मार्केट का. बिजनेस के लिए वो किंग है बिकॉज आजकल हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में है. बिना कंज्यूमर के डिमांड के, बिना कंज्यूमर के नीड के हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं. वी आर मेकिंग ऑल द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कस्टमर, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली getting the revenues from the customer only because if the product is finally sold to them. ठीक है, so marketing जो strategy है किसी भी organization का, वो किस चीज पे focus करता है? That is focused on retention of the customers and attracting the new customers. ठीक है, and how we can attract the customer? By promoting the product as well as by satisfying the need of the customers. ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आजकल देख ही रहे हो आप लोग कि कोई भी प्रोडक्ट के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रहा है, वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल रहा है. सो कस्टमर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर कस्टमर का डिमांड आपके प्रोडक्ट का खत्म, कस्टमर जो है उन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर दिया, व्हाट विल बी हैपन? योर कंपनी विल लॉस रेवेन्यूज. ट्रू, उसका भी इंपैक्ट है. तो कस्टमर जो है उन्हीं से आपका बिजनेस चल रहा है, खत्म, लेना बंद कर दिया, बिजनेस डिक्लाइनिंग की ओर बढ़ने लगा. ठीक है, तो वी ऑलवेज वांट टू सस्टेन द कस्टमर्स इन द मार्केट. अभी तुम लोग देख लो, एग्जांपल के लिए तुम लोग को बताती हूँ. अभी तुम लोग देखना कि जैसे आजकल हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वी वांट अ पेमेंट हमें ऑनलाइन करना होता है ना. और तुम लोग सोचो अगर कोई भी बिजनेस आज भी कन्वेंशनल वे में चल रहा है, डिजिटल एरा के टाइम पे भी वो पेमेंट ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग प्रोडक्ट परचेज करोगे? किसी भी रिटेल का एग्जांपल ले लो, नहीं करना चाहेंगे. नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कई बार हमारे पास खुद कैश नहीं होता है. आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक है, सो दिस इज हैपनिंग ऑल द टाइम. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सुनिए. In today's digital era, most of the customers share their positive and negative reviews about the product and services or brand. ठीक है, this influences the buying decision of the customer as well as a lot of people are using the social media. So satisfied and happy customers always help you to increase the revenue, but if they are not satisfied, that is going to decrease the revenue too. So in short ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स भी हमारे बिजनेस को बहुत इफेक्ट करते हैं. कस्टमर्स हमारे लिए किंग है. कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो दे कैन यूज द सोशल मीडिया एज वेल. वो निगेटिव पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, आपके बारे में कर सकते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ही वर्सली पड़ेगा. सो कस्टमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेल. By the mouth publicity, they can tell the positive things about your company as well as if their experience is bad, they are going to share the negative things about your company. So always try to satisfy the customers and try to fulfill their needs. Clear हो गई बात, समझ में आया?
and whatever is the demand of the customer, like what I told you earlier, पेमेंट का सिनारियो मैंने बताया कि आजकल पेमेंट सबको ऑनलाइन करना है, कार्ड की जगह गूगल पे यूज करने लगे हैं, तो प्लास्टिक कार्ड से भी हम बाहर चले गए हैं, डिजिटल एरा की तरफ बढ़ चुके हैं, गूगल पे यूज करना है, फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें पेमेंट का भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता तो कई बार हम परचेज नहीं करते हैं चीजों को, है ना। सो हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट द कस्टमर इज आल्सो इफेक्टिंग द बिजनेस, ठीक है, इन बोथ वे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. And the loyal customer is one of the beneficial thing for you. If the people are very much associated with your company, if they are very much loyal toward your company, then they are not going to switch to the other brand or other business, right? ठीक है, चलिए. Next one is the competitors. अब what competitors are doing? So competitors जो होते हैं आपके बिजनेस के राइवल्स होते हैं, वो आपके मार्केट शेयर को ग्रैब कर सकते हैं. जैसे अगर आपका पूरे मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, अगर कोई कॉम्पिटिटर एंटर करेगा अच्छे प्रोडक्ट के साथ करेगा, तो हो सकता है आपके मार्केट शेयर को ग्रैब करना शुरू कर सकता है, ठीक है. सो आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हमें देखना चाहिए, ठीक है. हमें कई बार हम वेट करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स एक्शन ले और उसका इम्पैक्ट हम उनके बिजनेस पे देखें, ठीक है. अगर हमें लगता है कि वो प्रॉफिटेबल है तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च द सेम थिंग. सो द कॉम्पिटिटर्स हैव अ वेरी दे आर इफेक्टिंग आवर बिजनेस अ लॉट. इफ दे आर डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डेफिनेटली द पीपल आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट कंपनी. ट्रू. सो कॉम्पिटिटर्स प्राइस चेंज करे, प्राइस को इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, उसका इफेक्ट भी हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, ठीक है. कॉम्पिटिटर्स कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसका भी इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा. अगर जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट ने आजकल क्या किया है, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द फूड डिलीवरी सिस्टम. अगर आपने फूड डिलीवरी नहीं प्रोवाइड किया तो डेफिनेटली योर द कंपनी, योर रेस्टोरेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट. सो व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, दे आर डायरेक्टली इफेक्टिंग द बिजनेस, ठीक है. Whatever strategies they are making, either for the services or for the selling the product or for the customers, if you're not able to do it like that, if you're not able to improve like them, if you're not able to increase or decrease the price like them, then definitely customers are going to move toward that business. Yes, Harsh? How it is a controllable factor? See, it is totally depend upon the monopoly. Like if there is some companies have monopoly in the market, if they are the stronger one, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि they are able to set the price in the market. Price जो होता है that is always set by the government rules and regulations. We cannot हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं प्राइस को अपने हिसाब से, कंपनी के पास राइट नहीं होता बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है. सो कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस, अगर उन्होंने डिक्रीज किया प्राइस, वो आपकी कंपनी के ऊपर इफेक्ट करेगा. हाँ, लेकिन एक चीज बताऊंगी कि हर एक कंपनी का इफेक्ट आपकी कंपनी पे नहीं पड़ेगा. छोटी मोटी कंपनीज है, नॉन ब्रांडेड कंपनीज है, उनका इफेक्ट आपकी कंपनी पे नहीं पड़ेगा. बट यस, अगर आप कोई सिमिलर टाइप है, अगर हल्दीराम और बीकानेर का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर इफेक्ट आपके प्राइस पे पड़ेगा, प्राइस का, उनके स्ट्रैटेजी का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन जो कॉम्पिटिटर होने चाहिए वो सेम टाइप ऑफ बिजनेस के होने चाहिए. हर्ष, क्लियर है? यस मैम. ओके. सो अगर आपसे बेटर कॉम्पिटिटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा. अगर आपसे बेटर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा. तो बस यही चीज होगा कि जब कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को स्विच करने में दिक्कत नहीं है. द कस्टमर को क्या चाहिए? वैल्यूएबल आइटम, लेस प्राइस में, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, आपसे बेहतर मिलेगा, चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे. सो द कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो इफेक्टिंग द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज, जैसे एग्जाम्पल में देखो, वाव मोमोज, कितने लोग खाया है मोमोज? वाव मोमोज में, वाव मोमोज, WOW, वाव मोमोज में कितने लोगों ने मोमोज खाया है? रेज योर हैंड. यहाँ है पटना में या नहीं है, ये बताओ मुझे पहले. राशि. अच्छा, वाव मोमोज इज देयर इन पटना और नॉट? बिकॉज मोमोज नेशन. मैम, पटना में नहीं है. नहीं है ना, मोमोज नेशन तो है यहाँ पर, बट वाव मोमोज, इवन आई एट मोमोज इन गुरुग्राम में, जब मैं रहती थी गुड़गांव में, तब मैंने वहां पर खाया था. तो यहाँ एग्जाम्पल उसी का है, वाव मोमोज का, कि वाव मोमोज ब्रांड यूएसपी जो उनका यूनिट सेल्स है,
lies in the diverse range of momos of different flavor that gives it competitive advantage over its competitor. तो why they are saying the competitive advantage? जब आप अपने competitor से कुछ बेहतर provide करते हो, ठीक है, then you are getting the competitive advantage. आपको कोई competitive advantage मिल जाएगा. जैसे अगर आप वाव मोमोज को ले लो और नॉर्मल वेंडर्स को ले लो जो मोमोज सेल करते हैं, वो नॉर्मल का तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मोमोज नेशन को और आप वाव मोमोज को ले लो. सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मोमोज नेशन से वाव मोमोज के पास ज्यादा वेराइटीज हो, तो यहाँ पर उनको क्या मिल रहा है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू डू कंपेयर कि ठीक है इनका प्राइस कंपेयर करते हैं एंड द क्वालिटी एंड द डाइवर्सिफिकेशन और द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन दे हैव. सो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि वाव मोमोज एक ब्रांड है जिसके पास मल्टीपल टाइप ऑफ मोमोज की बोल सकते हैं ना कि टेस्ट और क्वालिटी में दे हैव मल्टीपल टाइप ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर्स अवेलेबल, राइट? सो दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. उनके कॉम्पिटिटर से ज्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि उनके पास मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शंस है प्रोडक्ट का. ओके, एम्प्लॉइज का क्या है? एम्प्लॉइज कैसे इफेक्ट करते हैं बिजनेस को? सो जो ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्किल्ड एम्प्लॉइज, थ्रू एक्सपर्ट्स हु आर आल्सो एक्सपर्ट इन द एरियाज. सो एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके लिए सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, हायरिंग ऑफ राइट पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सही लोगों को सही जगह पे रिक्रूट करना जरूरी है. सो अगर आपके एम्प्लॉइज बिल्कुल स्किल्ड है, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस्ड है, तो they are going to contribute positive things toward your company. Maybe they can make a proper strategy, maybe they have a project implementation plan they have, so they are going to use their skill for benefit of your organization. But just vice versa, yani if the person is unexperienced, if the person have no knowledge about that what designation he got, what work he had to do, they are basically become the liabilities for the company. What they will do, they will start doing the things in the wrong way, they will do the errors in the work. So always remember, if you are hiring the employees, just hire those people who are experienced, or either if they are unexperienced, just provide them a proper or adequate training. ठीक है, उनको proper training दीजिए ताकि और उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए डेवलपमेंट का. और ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, बिकॉज दे आर एट द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड द प्रोसेस, राइट? सो इफ द एम्प्लॉइज आर एक्सपर्टीज, they are going to give benefit. If employees have no knowledge and they are inadequate in their performance, they are not going to provide you better service, and matlab they are not able to perform their बोल सकते हैं performance and duties whatever they are assigned to. So I guess this point is clear to all of you. The competent staff is always valuable for you. Competent staff जो होंगे वो हमेशा आपके लिए valuable होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन की efficiency को increase करेंगे, और इसीलिए हमेशा हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो रन करते रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. Who are the shareholders? Shareholders वो होते हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपने आदित्य बिरला का शेयर ले लिया, आदित्य बिरला ग्रुप का शेयर ले लिया, तो आपने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया. अब आपके पैसे का यूटिलाइजेशन क्या है भाई? जैसे जैसे कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा आपके पैसे का भी वैल्यू बढ़ेगा, जैसे ही घटेगा वैसे ही घट जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अ स्पेक्युलेटिव रिस्क. द रिस्क इज ऑलवेज देयर रिलेटेड विद द शेयर्स, बट यस द रिस्क इज लिमिटेड, बिकॉज जितने का शेयर है उतने का ही पैसा का डूब सकता है, उससे नहीं डूबेगा. चलिए, द शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन योर कंपनी and the owners, they are the owners of the company in short. ठीक है, they are eligible for the return on investment. Whatever they are investing, they are eligible for getting it back. If the amount is increased, then definitely आपको बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा. अगर आपने 5,000 इन्वेस्ट किया 50,000 में कन्वर्ट हो गया तो you will get 50,000 rupees. ठीक है, so the organization is liable to forward benefits to them from profit. मतलब जो भी वो पैसे कमा रहे हैं उससे उनको भी बेनिफिट मिले, शेयर होल्डर्स को भी. सिर्फ कंपनी अकेले नहीं एंजॉय करता है सोल प्रोप्राइटर की तरह, शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो एंजॉइंग द बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाट द कंपनी इज अर्निंग, राइट?
सो जितना पैसा लगाओगे उस हिसाब से जितना इंक्रीज होगा शेयर का वैल्यू, उतनी ज्यादा आपके पैसे इंक्रीज होंगे। ऑर्गेनाइजेशन कई बार जो है वो डिविडेंड भी पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि स्टेक्स और शेयर होल्डर्स के बीच में एक बैलेंस बना रहे। सो द शेयर होल्डर्स, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो शेयर होल्डर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, तो शेयर होल्डर्स मे एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन देयर शेयर इन द ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट दैट कैन अफेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। सो हमेशा जो शेयर होल्डर्स है उनके साथ आपको एक रिलेशन बना के रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखना चाहिए, ताकि आपकी बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में आराम से चले और लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और सक्सेस रेट भी हो सकता है आपका इंक्रीज हो जाए। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर्स बिकॉज दे आर द इन्वेस्टर्स एंड फ्रॉम देम द कंपनी इज गेटिंग द मनी। ठीक है, सो फॉर रनिंग द बिजनेस वी रिक्वायर्ड मनी ऑब्वियसली, सो शेयर होल्डर इज ऑल्सो इफेक्टिंग आवर business. If the shareholders, number of shareholders will be decreased in the business, definitely it is going to affect the business in the worst way. क्लियर होगी बात, समझ में आया? कम होते जाएंगे शेयर होल्डर्स, आपके बिजनेस का भी इफेक्ट उसी तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, सो आई गेस द माइक्रो एनवायरमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। माइक्रो एनवायरमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Okay. Let's start with the next one, and that is the macro environment pastel: political, economical, social, technological, legal, and the ecological. So I guess I don't need to elaborate each and every point because हम लोगों ने पूरे क्लास में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटिकल फोर्सेस क्या होते हैं तो मैं बता दूं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस होते हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं, बोल सकते हैं इससे, पॉलिटिकल सिनारियो से रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स। मान लीजिए कि आपका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इट इज बेसिकली इफेक्टेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे चेंज होगा गवर्नमेंट में, जैसे 5-year plan that was closed because the NDA government came in 2014, right? So the political stability and instability that is going to affect the business. Second one is legal. Legal में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी? It is related with the acts, rules and laws. ठीक है, जैसे GST, it is a basically act. ठीक है, आपका कोई भी एक्ट, लॉ, कुछ भी बनाया जा रहा है तो that will come under the legal में आएगा आपका, legal environment में। Next one is what is social environment related with the Protection Act, Consumer Protection Act, Environmental Protection Act. Next one is, उसके अलावा आपका क्या हो सकता है, जैसे आपका डेमोग्राफिक में it is a age, culture, ठीक है, occupation of the people, family background, each and everything comes under the demographic. उसके अलावा आपका टेक्नोलॉजिकल में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भी हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक द अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजों से आपका, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू इलैबोरेट ऑल दीज पॉइंट्स वंस अगेन, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर टुडेज आई गेस these points are clear to all of you. True? Clear है? Yes, ma'am. Okay, so in the next class we are going to start with the macro environment and any of the, okay, so see you all in the next class. Thank you, ma'am. Okay, anyone have any doubt? No, ma'am. Okay, No, ma'am. okay, see you all in the next class tomorrow. जो भी Thank बचे हुए you, क्वेश्चन ma'am. है हम लोग वो कल कर लेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. देखो, एक चीज तुम लोग हमेशा याद रखो, जो भी क्वेश्चन है वो मैंने एक चीज आप लोग को बता, Thank you, ma'am. ओके। Thank you.